أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فالرجل ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى يعجب الشهداء إذا مضوا ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة ولا ترتابوا إلا أن تكون تجارة تريدونها کیا میں نے کیا پڑھا ہے تدیرونا پڑھا ہے اچھا غلط تدیرونا بینکم فلیس علیکم جناح لا تکتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضاعتم ولا فلو فإنه فسوق واتقوا الله والله بكل عليم. وإن على سفر فجدوا كاتبا مقبوضا إن أمنكم بعضا فليؤذيه اؤتمن أمانة اتق الله ربه ولا مشرك فإنه آثم به والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. اور چاہیے کہ وہ شخص جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، یعنی جس نے ادا کرنا ہے وہ لکھوائے، جس نے لینا ہے وہ نہ لکھوائے، کیونکہ ادا کرنے والا اپنے معاملے میں پوری احتیاط برتتا ہے، کوئی ایسا چکر نہیں دے سکتا تحریر میں جو اس کے خلاف پڑے، اور اگر لینے والا جو دے رہا ہے قرض وہ لکھوائے تو یہ الٹ ہے یا وہ یہ ہے، جس نے حق ادا کرنا ہے اسی کی بات ہے نا، ورنہ یہ علیہ الحق کو دوسری طرح نہیں پڑھا جا سکتا میرے ذہن میں، درست ہے نا یہی بات. تو اس طرز پہ یہ بنتی ہے علیہ الحق کو جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے، وہ اپنے خلاف ایسی عبارت نہیں لکھوا سکتا کہ اس عبارت کے چکر میں خود پھنس جائے. جس نے قرض دیا ہے وہ نہ لکھوائے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے ایسی عبارت لکھوا دے جس سے بعد میں دوہرے معنی بنتے ہوں اور اس کو
उन शर्तों का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाए। तो मुझे जो बीच में थोड़ा सा शक पड़ा था इसलिए कि लेने का हक़ तो उसका है ना वापस, लेकिन इसलिए थोड़ी देर के लिए तरद्दुद हुआ था कि क्या बात हो रही है। मगर असल बात वही है जो मैंने पहले बयान की खुल्म खुली कि जिसने लिया है कर्ज़ा उसकी वाजिब है उस पर उसकी वापसी, वो लिखवाए और दूसरा ना लिखवाए। कितनी बारीकी से अल्लाह ताला ने लेन देन के मामलात में हमें एहतियातें सिखाई हैं, और सबसे ज़्यादा बेहतियाती दुनिया में लेन देन के मामलात में होती है। यही बात सामने आई कि महाजन को जो तो कर्जा देते थोड़ा सा लिख ज्यादा लेते थे, कोई लोग जाहिल होते थे, वो खुद पढ़ नहीं सकते थे। ठीक बात। और उनकी बइयों को कानूनी हैसियत हासिल थी, अदालत में कोई रद्द नहीं हो सकता था। वलियत्तक़िल्लाह, और उसको भी फिर मज़ीद ताकीद है कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे। वला यबख़स मिन्हु शैआ, उसके ये रुझान हो सकता है कि कुछ कमी वाली तहरीर दाखिल कर दे, बीच में कोई इश्तबाह पैदा कर दे। ये निस्बतन कम है, नफ्सियाती लिहाज से बैन यही सूरत हाल है कि जो ले रहा है वो फंसा हुआ होता है, इसलिए वो एहतियात करता है, हत्तल मकदूर चलाकी नहीं करता। लेकिन देने वाले का हाथ ऊपर है, क्योंकि वो अगर चलाकी करे और पकड़ी जाए तो वापस भी ले सकता है, अच्छा नहीं तो ना सही, मैं कर्ज नहीं देता। तो अगरचे इसका एहतमाल कम है कि लेने वाला लिखवाते वक्त कोई गलत बात लिखवा दे, लेकिन एहतियातन उसको भी खुदा ताला ने ताकीद फरमा दी है, एहतियात करो और कोई कमी ना करना तहरीर में। अब ये बज़ाहिर ताज्जुब की बात लगती है, तहरीरों में कमी कैसे होती है, मगर रोज़मर्रा के झगड़ों में साफ पता चल जाता है कि बाज़ ऐसी शर्तें दाखिल कर दी जाती हैं जिससे कोई बदयांती का रास्ता खुल जाता है। फ़इन कानल लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन, हाँ अगर वो शख्स जिसने हक़ अदा करना है बेवकूफ़ हो और ज़ईफ़न, या किसी पहलू से कमज़ोर हो चुका हो या बूढ़ा हो गया हो, और ला यस्तती अन युमिल्ला हुआ, और कोई भी वजह हो वो इस्तिताअत न रखता हो कि वो ख़ुद लिखवा सके, फल युमलिल वलीयुहु बिल अदल, तो ऐसी सूरत में उसके वली को हक़ है कि वो तहरीर लिखवाए, लेकिन अदल के साथ, इंसाफ के साथ। यहाँ वली से क्या मुराद है? वली से मुराद बाप नहीं है यहाँ, क्योंकि जो ज़ईफ़ का लफ्ज़ है वो सिर्फ़ बच्चों पर ही नहीं बूढ़ों पर भी इतलाक़ पाता है, और दोनों सूरतें मुमकिन हैं, एक बेवकूफ़ छोटी उम्र का हो, एक बेवकूफ़ बड़ी उम्र का हो। तो साफ पता चलता है कि वली से मुराद यहाँ वो हैं जो उसके वारिस हैं अव्वल। बस वलीहु से मुराद है जो वारिस हैं, जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसमें दिलचस्पी ज़्यादा है जिनकी, और अगर नुकसान पहुँचे तो उनको पहुँचेगा। इस लिहाज से वली में गालिबन वारिस होने के माने दाखिल हैं, या उसकी देखभाल करने वाला, क्योंकि ज़ईफ़ है, अगर बेवकूफ़ है तो ज़रूर किसी न किसी के सुपुर्द उसके मामलात होंगे, कोई उसकी निगहदाश्त करता होगा, किसी के घर पल रहा होगा, कोई निगरानी कर रहा होगा, तो फिर वो वारिस होना ज़रूरी नहीं। जो भी उसका अमीन बनाया गया है, जिसके सुपुर्द उसके मामलात किए गए हैं, उसको फिर हक़ है कि वो फिर उसकी जगह तहरीर लिखवाए। वस्तशहिदू शहीदैन, और दो गवाह बना लिया करो, इस्तशहदा मैंने हासिल कर लिया करो दो गवाह, शहीदैन दो गवाह, मिर रिजालिकुम अपने मर्दों में से, फ़इन लम यकूना रजुलैन, बस अगर दो मर्द ना हो, फ़रजुलुम वम्रातान, तो एक मर्द और दो औरतें, मिम्मन तरदौना मिन शुहदाए, जो तुम आपस में अपनी पसंद से इख्तियार कर लो गवाहों में से। तरदौना मैंने तुम लोग अबाहमी
मशवरे के साथ या जिस तरह भी हो राज़ी होनी चाहिए सारी पार्टियाँ इस पर, जो मुतल्लक़ लोग हैं सबको इस पर इत्मीनान हो, वो शुहदा हासिल कर लें। क्यों है ये अन तुदिल्ला इहदाहुमा, कि अगर उनमें से एक भूल जाए, फतुज़क्किरा इहदाहुमा हुमल उखरा, तो उनमें से एक दूसरी को याद करा दे। ये जो आयत है ये काफ़ी ज़ेर बहस आई है पिछले दिनों पाकिस्तान में, ख़ुसूसियत से जहाँ इस्लामी नुक्ता निगाह से गवाही के क़वानीन तय किए जा रहे थे। उलमाए सल्फ़ और आजकल जो उलमाए सल्फ़ के मुत्तबईन हैं उनमें से अक्सर का मौक़िफ़ यही है कि एक मर्द के मुकाबले पर 2 गवाहियाँ गोया इस्लाम में ज़रूरी हैं और औरत पर एतमाद नहीं है, इसलिए हर मामले में एक मर्द या 2 औरतें, जहाँ 2 मर्दों की गवाहियाँ वहाँ 4 औरतों की गवाहियाँ होंगी। गोया जहाँ 4 मर्दों की गवाहियाँ वहाँ 8 औरतों की फिर गवाहियाँ चाहिए होंगी। ये बात कतन गलत है और कुरान करीम की ये जो आयत है इसके सियाक़ व सबाक़ पर गौर करने से पता चलता है कि महज माली मामलात में ये इम्कान उठाया गया है। दूसरी गवाहियाँ जो हादसाती हैं उनमें कहीं इशारतन भी ये ज़िक्र नहीं कि एक मर्द के मुकाबले पर 2 औरतें। अब कत्ल हुआ है कोई, वहाँ एक औरत इत्तफ़ाक़न वाक़या मौजूद है, तो क्या दूसरी औरत ढूंढी जाएगी कि जब तक वो ना मिले गवाही मुकम्मल ही नहीं होगी? इसलिए कुरान करीम को आप पढ़ के देख लें, कहीं भी हादसाती मामलात में या दीगर दुनिया के मामलात में एक मर्द के मुकाबले पर 2 औरतों की गवाही का जिक्र नहीं। माली उमूर में है और इसमें एक से ज़्यादा हिकमतें हैं। अव्वल ये कि माली मामलात में अमूमन रोज़मर्रा का दस्तूर दुनिया में, बल्कि यहाँ भी इस तरक्की याफ्ता मुल्क में भी यही है कि मर्द माली मामलात को अक्सर निपटाते हैं और औरतें तन्हा अगर करें तो उनके धोखे में पड़ने का ज़्यादा इम्कान होता है। और माली एच पे एच को समझने में आम रोज़मर्रा की जो हाउस वाइफ्स हैं वो बहुत गलती खाने का एहतमाल रखती हैं। तो औरतों में सिर्फ़ तालीम याफ्ता या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की बात तो नहीं हो रही, रोज़मर्रा के गवाहों की बात हो रही है। और उनमें इंसानी तजर्बा बताता है कि माली मामलात में औरतें निस्बतन कम फ़हम रखती हैं और घर में भी जब बातें होती हैं तो वो अपने भाई से, अपने बड़े से पूछती हैं कि ये ऑफ़र आई है, हम इसको इस तरह कबूल करें कि ना करें। जब तक उनको मर्द का मशवरा न मिल जाए पूरा इत्मीनान नसीब नहीं होता। एक तो ये पहलू है। दूसरा ये पहलू है कि ये 2 गवाहियाँ हैं ही नहीं, बल्कि एक गवाही है, दूसरी मददगार के तौर पर है, इस वजह से कि माली मामलात में क्योंकि पूरी फ़हम नहीं, इसलिए ज़हूल का यानी भूलने का ख़तरा ज़्यादा है। ये बात इस तरह हुई थी। और दूसरी औरत के मुतालिक फरमाया वो यहाँ बैठी होगी, इसलिए बैठी होगी साथ कि अगर वो भूल जाए तो दखल दे, अगर वो ना भूले तो उसको पेश होने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। बस एक के मुकाबले पर 2 गवाहियाँ नहीं हैं, बल्कि दरअसल एक औरत की गवाही के साथ दूसरी उसकी मददगार के तौर पर रखी जाए, क्योंकि माली मामलात में उसके भूलने का ख़तरा है। वो याद करा देगी कि नहीं बीबी ये नहीं था, ये बात हुई थी, फिर वो उसको याद करेगी, उसको याद आ जाएगी तो वही गवाही मुकम्मल हो जाएगी। तो इन मानों में ये 2 गवाहियों का जिक्र है और सिर्फ माली मामलात में है। अब जहाँ औरत और मर्द के दरमियान हलफ उठाया जाता है और हलफ के ऊपर फैसले होते हैं, वहाँ औरत 8 हलफ नहीं उठाती, मर्द भी 4 और औरत भी 4, यानी 4 गवाहियों के औरतों की हैं और 4 गवाहियाँ मर्दों की। क्योंकि गवाह मुयस्सर नहीं, इसलिए वो 4 गवाहियाँ उसकी कायम मुकाम बन जाती हैं। तो वहाँ खुदा ताला ने ये क्यों नहीं फरमाया कि औरत 8 दफ़ा कसमें खाए। साफ पता चलता है कि गवाही के एतबार के लिहाज से बराबर दर्जा है, लेकिन बाज़ मामलात में इंसानी फितरी तकाज़ा ये है कि औरत के
भूलने के एहतमाल को कम करने की खातिर उसके तोड़ के लिए उसकी एक साथन और मुकर्रर कर दी जाए। तीसरी बात इसमें यह है कि औरतों को वैसे ही गवाही में ज़्यादा घसीटना अच्छा नहीं होता, और अगर मजबूरी हो तो फिर 2 औरतों के मुतल्लिक फरमाया गया है, और अकेली औरत ना जाए। उसमें औरतों को एक दूसरे के साथ फिर कॉन्फिडेंस भी होता है, और बजाय इसके किसी अकेली औरत को गवाही के लिए घसीटा जाए और वहाँ जरा की जाए, 2 औरतें हों, क्योंकि मर्द मुयसर नहीं आ सका, इसलिए मजबूरन औरतें आईं, और उनके एहतराम का तकाजा ये है, उनको हौसला देने का तकाजा ये है कि उसके साथ एक दोस्त या सहेली जो भी है वो साथ बांधी जाए, ताकि दोनों मिलकर एक दूसरे को मजबूती अता करें। आगे था हाँ ये हो चुके। हाँ, इमरादान मिमन तरज़ौना मिन शुहदाए अन तुदिल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किरा, यानी इसलिए कि अगर उनमें से कोई एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद कराए। अगर अलग अलग गवाहियाँ हों तो फिर तो इख्तलाफ गवाहैन हो जाएगा। अगर हर गवाही इंडिपेंडेंट हो तो दोनों गवाहियों का एतबार उठ जाएगा, वो तो इख्तलाफ गवाहैन कहलाता है। इसलिए ये मजमून ही नहीं है। यहाँ एक गवाही दे रही है, और अगर वो गलती करती है तो खुदा ताला ने उसको झूठा नहीं करार दिया। अगर मर्द गलती करता है तो उसने गोया झूठ बोला या भूल गया, उस गवाही की हैसियत ख़त्म हो गई। औरत गलती करती है, उसको हक दिया है कि अपने साथ अपनी बहन को बिठाया, वो याद करा दे कि हाँ अब मुझे याद आ गया। इस हद तक गवाही में तब्दीली करने का हक अता हो गया है। तो किसी पहलू से भी ये आयत औरतों की तजलील नहीं बल्कि उनकी इज़्ज़त अफजाई और उनके एहतराम के क़याम की ज़मानत है। वला याब शुहदाओ इज़ा मादऊ, और औरतों के ज़िक्र के बाद ही फरमाया और गवाह इनकार न किया करें जब उन्हें बुलाया जाए। औरतों के इनकार का ज़्यादा एहतमाल है, ख़ास तौर पे अकेली का। तो फरमाया कि कोई बात नहीं, साथ में लेके जाओ, और कोई घबराने की बात नहीं है। गवाही मजबूरी है, ज़रूर देनी चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए। इज़ामा दो का क्या मतलब है? हैं? जो वो बुलाई जाए। हाँ, ये कौन सा सिगा है? बुलाई जाए नहीं, इज़ामा दो मुज़क्कर का है सिगा। हैं? जमा गायब मुज़क्कर, ये जमा गायब मुज़क्कर। ठीक है, और है क्या? फेल है या इसम है? हैं? शक है? क्या है? ये किसने बताया फेल अमर? फेल अमर किस तरह हो गया? तो साफ नजर आ रहा है मजहूल है, फेल मुजारिया मजहूल, फेल माजी, आई एम सॉरी, माजी मजहूल। इज़ा ने इसे मुजारिया की, इसलिए मेरे दिमाग में मुजारिया रह गया था। जब माजी फेल पर इज़ा आ जाए तो वो उसे मुजारिया बना देता है। तो मुजारिया जो मैंने कहा है वो इस मजमूई तरकीब से कहा था, वरना महज दो माजी का कलेमा है। और माजी कौन सा? सलासी, ठीक है। माजी फेल माजी सलासी मुजर्रद, ठीक है। और गायब मुज़क्कर, जमा गायब मुज़क्कर, ठीक है। जब भी उन्हें बुलाया जाए, ये मतलब हो उन्हें बुलाया जाए। वला तसमू अन तक्तुबूहु
सगीरन और कबीरन इला अजले, और इस बात से उकता न जाना कि तुम उसे लिख लिया करो, खा छोटा मामला हो या बड़ा मामला हो, उसकी मुद्दत के ऐन उसकी मुद्दत के ज़िक्र के साथ मुकम्मल तौर पर। अब ये बहुत ही अहम मज़मून है, जबकि लिखने का रिवाज ही शाज़ था और याददाश्तें आज के मुकाबले पर बहुत बेहतर थीं, जबकि हज़ारहा शेर अरबों को ज़ुबानी याद होते थे और बाद लाख लाख का दावा करते हैं, और उसके अलावा अहादीस सारी हिफ्ज़ के ज़रिए हमें पहुँची हुई हैं। उसके बावजूद कुरान का ये हुक्म कि लिखना है, ये साफ बता रहा है कि ये इलाही कलाम है। उस माहौल, उस माशरे की पैदावार किसी इंसानी दिमाग की बात नहीं है, वरना वहाँ लिखना तो बड़ा दूभर था। और तख्तुबू बता रहा है कि ये रुझान है इंसान में, आम तौर पर लिखना पढ़ने को से घबराता है और थक जाता है। बहुत सी बातें फिर ज़ुबानी चल पड़ती हैं, जहाँ ज़ुबानी चली वहाँ फसाद शुरू हो गए। इसलिए आजकल के ज़माने में भी यही हाल है, उस ज़माने की बहस नहीं है। सिर्फ बहुत एतराज़ करते हैं लिखने पढ़ने से, और बाज़ों को कौन लिख लें तो कहें तुम्हें एतबार नहीं, और जो कहते नहीं एतबार, फिर वो बेएतबारा ही निकलता है अक्सर। एतबार की बहस नहीं है। अगर किसी को कोई काबिल एतमाद है तो उसको कोई ख़तरा नहीं है लिखने से। जो ये कहकर लिखने से बचता है कि तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं, वहीं उसकी घंटी ख़तरे की बच जानी चाहिए कि मुझे तुम पर एतमाद कैसे हो, तुम्हें कुरान पर एतमाद नहीं है। कुरान फरमा रहा है लिखो, तुम्हें एतमाद नहीं है कुरान करीम पे, अगर नहीं है तो फिर मुझे तुम पर भी एतमाद नहीं है, सौदा ही मनसूख करो। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। ला तसमु बहुत ही अहम एक नफ्सियाती नुक्ता है, बयान फरमाया है कि इस बात से थकना नहीं तुमने। माशरे के अमन के लिए माल लेन देन के जो मामलात हैं उनको महफूज करने की खातिर ज़रूरी है कि तुम लिखा करो, छोटा हो या बड़ा हो, और साथ मुद्दत भी लिखा करो, कर्ज़ वगैरह की या शराइत मुआहदा की। शराइत मुआहदा के साथ उसकी मुद्दत कब ये ख़त्म होगा। ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, ये बात अल्लाह के नज़दीक इंसाफ के ज़्यादा करीब है। इंसाफ के ज़्यादा करीब है का मतलब है इससे इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे, वरना जितना तुम इससे दूर हटोगे इंसाफ के तकाज़ों से दूर होगे और फिर झगड़े पैदा हो जाएंगे। व अक़वमु लिश्शहादत, और गवाही के लिए भी उसे मजबूती अता करने के लिए, उसे कायम रखने के लिए तहरीर ज़रूरी है। व अदना अल्लाह तरताबू, और इस बात के ये ज़्यादा करीब है कि तुम शकों में ना मुब्तला रहो, अंदाज़े न लगाया करो कि शायद ये यूँ था, शायद ये यूँ था। इल्ला अन तकूना तिजारतन हादिरतन तुदीरूनहा बैनकुम, हाँ एक फ़र्क है कि वो तिजारत जो लेन देन रोज़मर्रा का हो, एक हाथ दिया दूसरे हाथ लिया, इसमें लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसमें बदयांती कभी देखी नहीं गई। बदयांत जगहों में भी इल्ला माशाल्लाह कोई बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो तो हेर फेर हाथ का कर जाए और बात है, वरना आमने सामने पैसे दिए वो चीज़ मिलती है और वापस पैसे मिलते हैं। यहाँ तक कि उनके मुतलिक भी जिनके मुतलिक कुरान करीम फरमाता है कि बदयानत हो जाते हैं बाज़ लोग, बाज़ कौमों के मुतलिक फरमाया माली मामलात में बदयानत हैं, मगर इल्ला मादुमता अलैहि क़ाइमा, सिवाय इसके कि जब तक तुम खड़े हो उस वक्त तो वो बेईमानी नहीं करते। तो ये एक नफ्सियाती नुक्ता है बहुत अहम, जिसके पेश नज़र फरमाया इसमें चूँकि ख़तरा कोई नहीं है लेन देन के मामलात में भूल चूक का, आमने सामने की तिजारत में कोई ज़रूरत नहीं है कि लिखा करो। फलैसा अलैकुम जुनाहुन
अल्लाह तक्तुबूहा, इस मामले में तुम पर गुनाह नहीं है कि तुम ना लिखो। व अशहदु इज़ा तबायातुम, और जब तुम सौदा किया करो, खरीद व फरोख्त तबायातुम में दोनों बातें शामिल हैं इसमें, तो क्या गवाह बना लिया करो। वला युदार कातिबुम वला शहीद, और जो लिखने वाला है और जो गवाह है उसको उस पर किसी किस्म का कोई दबाव ना डाला जाए। युदारा का मतलब है उसे तकलीफ ना दी जाए, उसमें अव्वल तौर पर दबाव शामिल है। किसी किस्म का अखलाक दबाव या डरावा वगैरह उसको ना दिया जाए, या धमकी ना दी जाए और तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए उसके सच बोलने के नतीजे में। वइन तफलू फ़इन्नहु फुसूकुम बिकुम, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारा गुनाह शुमार होगा। फ़इन्नहु फुसूकुम बिकुम, ये तुम्हारे पास एक गुनाह की कार्रवाई हो जाएगी खुदा के नज़दीक, जो तुम्हारे हिसाब में लिखी जाएगी। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। व युअल्लिमुकुमुल्लाह, और देखो अल्लाह तुम्हें किस तरह तालीम दे रहा है। युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें सिखा रहा है ये बातें। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और सिखाने वाला वो है जो हर चीज़ को खुद जानने वाला है। तो एक ऐसा तुम्हें सिखाने वाला मुयस्सर आ गया है जो हर हाल से वाकिफ़, तुम्हारी ज़ाहिर से वाकिफ़, तुम्हारे अंदरूनी से वाकिफ़, तिजारती मामलात की कुनों से वाकिफ़। इसलिए ये मामलात सीखने हैं तो अल्लाह से सीखने चाहिए, और तुम पर बहुत बड़ा एहसान है शरीयत मोहम्मदिया का कि अल्लाह तुम्हें खुद सिखा रहा है। वरना ये तिजारतें कभी किसी और मज़हब में भी सिखाई थी किसी ने। जिस तफसील से कुरान तिजारत के राज सिखा रहा है और अमन की राहें बता रहा है, किसी और मज़हब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब ये भी देख लें, साथ शहीद भी रखा हुआ है और किताबत भी। और आजकल के ज़माने में इसकी अहमियत और भी बहुत वाज़ेह हो गई है, क्योंकि तहरीर में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें दोनों मुख्तलिफ मतलब डालने की कोशिश करते हैं। अगर गवाह मौजूद हों तो वो बता सकते हैं कि जब ये बात हुई थी तो कौन सा मज़मून पेश नज़र था। इसलिए तहरीर बाज़ दफ़ा नहीं बोल सकती तो गवाह बोलते हैं। बहुत ज़रूरी है कि तहरीर के साथ गवाह भी हों। इतना पुख्ता शहादत का निज़ाम दुनिया में कहीं, मज़हब में तो क्या दूसरी जगहों में भी इस तफसील और इस शान के साथ नहीं मिलता। व इन कुंतुम अला सफ़रिन व लम तजिदू कातिबन फ़रहानुम मक़बूदा, अगर तुम सफ़र पे हो और तुम्हें कातिब मुयस्सर न आए तो कोई रहन मकबूजा किताबत के बदले, तहरीर के बदले दे दिया करो। अब इसमें क्या मंजर है, सफ़र पे हो तो किससे, इससे क्या मुराद है, किस तरह, वो किस सौदे की बात हो रही है। क्यों जी, किसी मुसाफिर से सौदा करना मुराद है या कुछ और है? कोई बताएगा? तर्जुमा तो आ ही है, तो इस तर्जुमे ने क्या बताया आपको, ये मैं तवज्जो दिला रहा हूँ। जब तर्जुमा पढ़ा करें तो ये सोचा करें कि उस तर्जुमे ने कोई पैगाम भी दिया कि नहीं। अगर नहीं दिया तो उस हद तक तर्जुमे में खला पैदा हो जाता है। उन दिनों में तिजारत, उन दिनों में ये होता था कि जहाँ भी पड़ाव पड़ता था मुसाफिरों का, वहाँ पर वो कुछ चीज़ें खरीद लेते थे और कुछ बेच भी देते थे। तो ये मेरे ख्याल में उस मामले में है कि अगर वो कुछ कर्ज बेचे तो उस वक्त नहीं, सिर्फ पड़ाव की बहस नहीं हो रही, ये बात आपकी दुरुस्त है। इसी में है दरअसल इशारा अव्वल तौर पर कि आम तौर पर काफ़िले सफ़र किया करते थे, और वो पड़ाव हो या ना हो, सफ़र के दौरान किसी को ज़रूरत पेश आ जाती है, और चंद आदमी ऐसे हैं जो लिखना पढ़ना नहीं जानते मसलन, तो वो इकट्ठे जा रहे हैं, तो उस सूरत में फरमाया कि कुछ रहन बकब्ज़ा ज़रूर कर लिया करो। मसलन आजकल लोग घड़ी रख लेते हैं, कोई और ऐसी चीज़ रख लेते हैं। उस ज़माने में भी ज़्यादा राह जिन्स की सूरत में कई किस्म का साथ हुआ करता था। तो
آج کل اور ذرائع ہیں رکھنے کے، قیمتی گھڑی، قلم وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں. تو فرمایا اگر فوری ضرورت قرضے کی پیش آئے تو ریحان مقبوضہ رکھ لیا کرو. اس سے مراد صاف پتہ چل رہا ہے، یعنی غور طلب بات یہ ہے کہ سفر میں اتنی جائیدادیں تو انسان نہیں اٹھائے پھرتا کہ بڑے قرضوں کی باتیں ہوں. اس لیے یہ روزمرہ کی اچانک ضرورت کی بات ہے، ورنہ ریحان مقبوضہ کا سوال ہی نہیں اٹھتا. جب تحریر نہیں تو گھر بھی پیچھے لکھ کے نہیں دے سکتا آدمی. صاف پتہ چل رہا ہے کہ روزمرہ کی کسی کے پاس 1000 پاؤنڈ کی 50 تو زیادہ ہے 100-200 پاؤنڈ کی ضرورت پڑ جائے اور مسافر ہوں جی مجھے دے دو، تو نہ لکھا جائے نہ رہن ہو، یہ جائز نہیں ہے. اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. تو آپ کے پاس جلسے میں جب آیا کریں مہمان اور پوچھا کریں کہ جی ہمیں فوری ضرورت پیش آئی ہے، تو آپ قرآن شریف کی آیتیں کھول کے سامنے رکھ دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود فرمایا کہ میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں. اس لیے یا تو ایسی پختہ تحریر ہو کہ اس سے تم الگ نہ ہو سکو، اور اگر اور کچھ نہیں تو چیزیں جو تم نے یہاں شاپنگ واپنگ کی ہے کچھ ہمارے پاس رکھوا جاؤ، پیسے بھیج دو گے تو ہم تمہیں واپس کر دیں گے. یہ قرآنی تعلیم ہے. اگر اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر نقصان کے لیے تیار ہو کر ذہنی طور پر کسی دوست سے رعایت کریں اس طرز پر کہ چلیں نہ آیا تو نہ صحیح، پھر وہ گناہ نہیں ہے. لیکن لینے کی نیت ہو اور نصیحت نظر انداز کر دی جائے، یہ درست نہیں ہے. سمجھ گئے؟ آپ نے بڑا پختی سے ہاں کیا، معلوم ہوتا ہے آپ سے کوئی تجربہ ہو چکا ہے اس قسم کا. سب سے زیادہ انہوں نے یقین سے کہ ہاں جی بالکل آئندہ سے تو میں قائم ہو گیا اس بات پر. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر تم میں سے تمہارے دوسرے بعض سے امن میں آ جائیں. کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ترجمہ تو ہے لیکن مطلب اس کا سمجھنا ضروری ہے. فَلْيُوَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. کیا نہیں یہ کیا مطلب ہوا؟ ان امینا بعضکم بعضاً، تم میں سے بعض دوسروں کے معاملات کی طرف سے امن میں آ جائیں. سفر پہ منزل مقصود پہ پہنچ جائے. یہ کس طرح نکلا؟ نکال کے دکھائے نا، مطلب یہ تو نہیں. کیوں امام صاحب یہ عام بس کی بات نہیں ہے. آپ یا ہمارے قمر صاحب ان کا کام ہے یہ بتائیں، اور ان کے مددگار کے طور پر مجید سیالکوٹی صاحب اور باجوہ صاحب استعمال ہو سکتے ہیں. خواتین کے طور پر نہیں میں کہہ رہا، ویسے مردوں کو بھی تو ضرورت پڑتی ہے مدد کی. بتائیں گا وہ سب. امین بنانے کا مطلب ہے کہ امن ان معنوں میں کہ اس کی امانت ہے اس کے پاس محفوظ ہو گئی. ہم نہیں یہ شرط دیکھیں نا کیا بیان ہو رہا ہے، پورا مضمون پھر بتائیں نا ساتھ کیا بنتا ہے. اگر تم میں سے ایک دوسرے کو کسی کو امین بنائے ٹھیک امانت کا، ٹھیک ہے، تو جس کو امین بنایا گیا ہے وہ اس شخص کو جس نے اس کے پاس امانت رکھوائی ہے. امینا بعضکم بعضاً فلیؤدِ الذی اؤْتُمِنَ امانتہ. ٹھیک، یہاں بالکل صحیح ہے. یہاں مراد یہ ہے کسی پر ایمان لے آئے، ان معنوں میں کسی کو اچھا سمجھ لے، سچا سمجھ لے، اور پھر اس کے پاس رہن رکھوا دے، تو اس کا فرض ہے کہ پیسے لے کر رہن واپس کرے. کیونکہ بسا اوقات لوگ بے ایمان ہو جاتے ہیں. رہن والی چیز عموماً پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور اگر قیمت تھوڑی ہو اور رہن بہت قیمتی ہو تو آدمی چلاکیاں کر سکتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ تم میں سے بعض نے کسی دوسرے پر اعتماد کیا ہے، اور اس اعتماد کا حق ادا کرنا ضروری ہے. مزید نصیحت کے طور پر فرمایا جا رہا ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جب تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتماد کر لے اور ان معنوں میں امن میں آ جائے. امن میں آ جائے کا جو ترجمہ ہے وہ ان معنوں میں ہے کہ اس کو تسلی ہو گئی، بس اب معاملہ صاف ہو گیا. پھر جس پر اعتماد کیا گیا ہے او تمہیں نے یہ بات کھول دی نا ساری،
जिस पर एतमाद किया गया है उसका फ़र्ज़ है कि वो अमानत वापस कर दे जब उसकी शर्तें पूरी हो जाएं। वल यत्तक़िल्लाह रब्बहू, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करे जो उसका रब है। अल्लाह का यानी अपने रब का। यहाँ दो पहले भी इसी तरह गुजरा है, अल्लाह और फिर रब, वरना आमतौर पर या अल्लाह का जिक्र आता है या रब का जिक्र आता है। इसमें रिज़्क़ की तरफ इशारा है कि रिज़्क़ के हिर्स में तुम अपने आप को अपना रब ना समझ बैठना, अल्लाह ही तुम्हारा रब है। अगर उसके नाम पर धोखा करो, उसके नाम से खौफ नहीं खाओगे और धोखा करोगे तो फिर वो रब अपनी रबूबियत तुमसे खींच सकता है। तो ये है जो बहुत ही गहरा एक वईद इसमें दाखिल है कि तुम्हें जब बात खोल कर बयान कर दी गई है तो तुम चालाकी करके कुछ पैसे तो खा सकते हो, मगर खुदा की रबूबियत के दायरे के साए से बाहर निकल जाओगे। और याद रखना कि अल्लाह ही तुम्हारा रब है, तुम अपने रब नहीं बन सकते। वला तक्तुमुश शहादता, और शहादत को ना छुपाया करो। वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, और जो कोई इसको छुपाएगा तो उसका दिल गुनाह कमाने वाला होगा, गुनाहगार हो रहा होगा। आसिमुन क़ल्बुहु है, क़ल्बह नहीं है, वो अपने दिल को गुनाहगार करेगा नहीं फरमाया, उसका दिल गुनाहगार बन रहा होगा। इससे मुराद ये है कि दरअसल वो फसाद दिल की नीयत में पैदा होता है, और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो तुम छुपाओगे तुम्हारे दिल में वो बदी पैदा हुई है, वो बदी दिल को गुनाहगार कर देगी। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और अल्लाह ताला जो कुछ भी तुम अमल करते हो उसको खूब अच्छी तरह जानता है। लिल्लाहि मा फिस समावात, अल्लाह ही के लिए है जो भी आसमानों में है, मा फिस समावात व मा फिल अर्द, और जो कुछ ज़मीन में है। व इन तुब्दू माफ़ी अनफुसिकुम, और अगर तुम ज़ाहिर करो माफ़ी अनफुसिकुम, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, और तुख्फू हो या उसे छुपाए रखो, युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह फिर भी तुम्हारा मुहासबा करेगा। दोनों सूरतों में तुम्हारे मुहासबे में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है, बिमा तामलून अलीम, फिर ज़मीन व आसमान में सब उसी का है, उसकी बादशाही से तुम निकल नहीं सकते। बस खा तुम ज़ाहिर करो दिलों की बात, खा दिलों में छुपाए रखो, युहासिबकुम बिहिल्लाह, हर सूरत में अल्लाह तुम्हारा मुहासबा फरमाएगा। फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ, हर गुनाहगार ज़रूरी नहीं कि पकड़ा जाए, अगर उसकी नेकियां गालिब हों, उसकी मजबूरियां ऐसी हों कि आदतन बद न हो, गलती से ठोकर खा गया हो, तो अगर वो इस्तिग़फ़ार से काम ले तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह बख्शने पर भी कादिर है। वह यग़फ़िरु लिमन यशाअ, जिसके लिए चाहेगा उसको बख्श भी सकता है, क्योंकि वो मालिक कुल है। यहाँ लेन देन के मामलात में ये सवाल उठता था कि मेरा कर्जा दूसरा कैसे माफ़ कर सकता है। अगर कोई कर्ज का देनदार बन गया हो तो अल्लाह ताला के को फिर क्या हक़ है कि वो उसे मुआफ़ फरमा दे। उतने का बदला लेना या उसकी सज़ा देना गोया खुदा पर फ़र्ज़ है। इस वाहिमे को दूर करने के लिए खुदा ताला ने पहले ही इसका तोड़ रख दिया है। फरमाता है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, तुम तो खुद अमीन हो, खुदा ने तुम्हें चीज़ें दी हुई हैं और असल मालिक अल्लाह ही है। बस जो भी बदयांती होती है वो दरअसल अल्लाह के ख़िलाफ़ हो रही होती है, और असल मालिक को हक़ है कि अपने ख़िलाफ़ बदयांती को माफ़ फरमा दे। तो इसलिए तुम ये नहीं कह सकते कि मेरा माल था और अल्लाह ने माफ़ कर दिया। जब हिसाब किताब होगा तो सिर्फ अल्लाह का माल होगा हर चीज़, और दरअसल हर बदयांती अल्लाह के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो मालिक कुल है। इस मज़मून को सोचने से
لین دین کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور احتیاط اختیار کرنے کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے کہ اگر میں نے کسی کا مال کھایا دراصل خدا کا مال کھا رہا ہوں اور اس کی ہدایت کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، 2 گناہ اس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی ہدایت کی خلاف ورزی تو ہے ہی، لیکن براہ راست کس کا مال کھا رہا ہوں یہ تصور جب پیدا ہوتا ہے تو تقوی کا معیار بڑھتا ہے اور ذمہ داری کا احساس بڑھتا ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جو فیصلہ کرے گا اس پر عمل کر سکتا ہے، کرے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے. بما انزل الیہ، یہ رسول ایمان لے آیا اس پر جو اس کی طرف اتارا گیا. من ربہ، اس کے رب کی طرف سے. والمومنون، اور مومن بھی ایمان لے آئے. سب سے پہلے رسول اپنی وحی پر ایمان لاتا ہے. اول المومنین ان معنوں میں بھی ہے اور ایمان کے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے بھی اول المومنین ہے. یعنی سب سے بہتر ایمان اس کا ہوتا ہے اور سب سے پہلے ایمان لانے والا وہ ہوتا ہے، پھر دوسرے مومن بنتے ہیں. پس والمومنون، اور بھی لوگ شامل ہو کر مومنین کا درجہ حاصل کر گئے جب رسول ایمان لایا اس پر جو اس پر اتارا گیا اس کے رب کی طرف سے. کل آمن باللہ و ملائکتہ، سب کے سب اللہ پر ایمان لے آئے اور ملائکہ پر ایمان لے آئے. وہ کتبہ و رسلہ، اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. یہاں کلن سے کیا مراد ہے؟ بعض دفعہ ایک تو معنی یہ بن سکتا ہے فوری کہ یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ سب کے سب ایمان لے آئے. دوسرا ہے کلن آمنا، سب کے سب ایمان لے آئے. اس میں ایک بہت گہرا نقطہ ہے جس سے سمجھنا ضروری ہے. اس کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض تحریریں بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گی. جب کل کہا جاتا ہے تو بسا اوقات قابل ذکر ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جو اپنے مقام کے لحاظ سے انسان کہلانے کے مستحق ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو قابل ذکر ہیں، باقی سب قابل ذکر ہی نہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے بچنا ہے وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے. حضرت نوح کے ساتھ جو شامل ہوئے وہ ایمان لے آئے. تو گویا اس وقت کلن آمنا کا مضمون ایک اس وقت بھی نظر آیا کہ جو صلاحیت رکھتے تھے کہ ان کو خدا تعالیٰ قائم رکھے اور آئندہ چلائے، جو معنی رکھتے تھے وہ ایمان لے آئے اور باقی مٹ ہی گئے. یعنی کل کا عمل ظاہری طور پر بھی اس طرح پورا ہو گیا کہ جن کا وجود ہی کوئی نہیں رہنا تھا وہ ان کو کل میں کیسے شمار کیا جائے. تو روحانی طور پر ہلاک ہو جانے والے بعض دفعہ کل کے لفظ سے پہلے ہی خارج کر دیے جاتے ہیں. ہر شخص جو ایمان لانے کی صلاحیت رکھتا تھا وہ ایمان لے آیا، یہ مراد ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک عربی تحریر میں عربوں کو مخاطب کر کے لکھی، اس میں یہ فرمایا کہ اب تو سب مجھ پر ایمان لے آئے ہیں سوائے ان کے اور ان کے. اور اس پر یہ مولوی خوب شور مچاتے ہیں کہ کہاں سب ایمان لے آئے، اور یہ آیت نہیں دیکھتے کہ چند مومن ابھی ایمان لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لے آئے ہیں. اور ان میں سب میں آئندہ مومن ہونے والے شامل ہوتے ہیں، کیونکہ جس وقت اس آیت کا نزول ہوا ہے اس کے بعد بھی مومن بنے ہیں. اور آمنہ کا صیغہ ماضی کا ہے، تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ یہ کہہ دینا کہ چونکہ مشن صاحب نے لکھا ہے کہ جو نہیں ایمان لائے وہ یہ ہیں. اس میں پوٹینشیل شامل ہوتا ہے کہ جن کی فطرت نیک ہو اگر ان کو صحیح پیغام مل جائے تو وہ ایمان لے آیا کرتے ہیں. بس آئندہ سارے کے سارے ایسے لوگ جب بھی وہ ایمان لے آئیں گے
وہ اس میں اس تعریف کے دائرے میں آ جائیں گے جو مصر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے والوں کی تعریف فرمائی. اور اس آیت کے تابع وہ مضمون ہے کیونکہ یہاں بھی آئندہ آنے والے مومن بھی سب شامل ہو گئے ہیں. ہیں؟ نہیں وہ اس وقت کر رہا میں کہہ رہا ہوں یہاں جہاں ماضی کا ہے وہاں بھی مضارع داخل ہے تو پھر باقی بات ہی ختم ہو جاتی. ماضی ہونے کے باوجود وہ سارے مومن شامل جو قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے رہیں گے کل ان میں یہ مراد ہے. وہ ملائک و کتب ہی و رسول اور اس کے فرشتے مان لے آئے اور کتابوں پر بھی اور پر بھی. لا نفرق بین احد من ایمان لے آئے کیا کہتے ہوئے. یہاں یہ قرآنی محاورہ ہے کہ بعض دفعہ یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ یہ کہتے ہوئے مگر ایمان ایک ایسا لازمی طبی بے اختیار تقاضا زبان سے جاری ہوتا ہے کہ یہ کہنے کی کہ انہوں نے یہ کہا وہ زبان حال بن گیا گویا کہ یہ کہتے ہوئے. یہ جو کہا گیا ہے منہ سے نہ کہیں ان کا ایمان اتنا کامل ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے سوا کوئی بات نکلتی نہیں. لا نفرق بین احد من رسل کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کسی رسول کے درمیان کوئی تفریق نہیں کریں گے. اب یہ جو بات ہے یہ بہت اہم ہے کیوں جی رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں کہ نہیں آپ چوئی صاحب لوگ کرتے ہیں ہیں کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول کے نہیں آپ بتائیں اپنا بتائیں لوگوں کو میں چھوڑیں فرق نہیں کرتا ہیں اس پہلو سے میں فرق نہیں کرتا. کس پہلو سے کہ خدا کی طرف سے سارے ہیں سب خدا کی یہی طرف بات میں کروانا چاہتا ہوں آپ سے کہیں کھل کے سب خدا کی طرف سے. لعن و فرقوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ درجے اور مرتبے کے لحاظ سے سب کو برابر سمجھتا ہوں. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ قابل تقلید ہونے کے لحاظ سے جس شخص کو جو وہی نبی کو ملی ہے اس کے مخاطب سب مخاطبین پر اس کی تعمیل اسی طرح ضروری ہے جس طرح اعلیٰ درجے کے انبیاء کی وحی کی ان کے مخاطبین پر تعمیل ضروری ہے. ایک یہ معنی ہے اور مقصد وجہ یہ ہے کہ آئے وہ خدا کی طرف سے ہیں. پیغام ہم اس لیے نہیں مان رہے کہ کوئی نبی اپنی ذات میں یہ اہلیت رکھتا ہے کہ لازماً لوگ اس کی پیروی کریں اور اگر نہ کریں تو خدا سزا دے. کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ خدا کی طرف سے ہیں اس لیے لازم ہے کہ ان کی اطاعت کرو. تو جب خدا کی طرف سے ہونا اطاعت کے لیے لازم ہے تو نبی ادنا ہو یا اعلیٰ ہو جہاں تک وہ خدا کی طرف سے اس کی اطاعت برابر اسی طرح فرض ہو جائے گی. کیونکہ اطاعت جس کے نام پر ہو رہی ہے وہ ایک ہے. رسول زیادہ بے شک ہوں رسول لاکھ بھی ہوں تو ہر رسول اللہ کے نام پر اطاعت مانگ رہا ہے. تو اس پہلو سے اطاعت کے نقطہ نگاہ سے کوئی فرق نہیں کرتے ہم. جس طرف سے بھی آواز اٹھے اگر وہ خدا کی آواز ہے تو پھر اطاعت ہوگی. یہ وہی مضمون ہے جو رسول کی دفعہ خدا نے سمجھا دیا کہ آدم کو جو ہم نے بنا دیا ٹھیک ٹھاک کر دیا تو ابھی اس کی اطاعت نہیں کرنی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب یہ ٹھیک ٹھاک کرنے کے بعد میں اپنی روح اس میں پھونکوں یعنی الہام کروں تب تم نے سجدہ کرنا اس سے پہلے نہیں کرنا. تو آدم بھی قابل تقلید ہوا وحی کے نتیجے میں اس لیے غیر اللہ کی وحی کا ذکر ہی وہاں کوئی نہیں. نفخ روح کے نتیجے میں ایک آدمی اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور وہ دراصل نفخ روح کی اطاعت ہے. تو اس لحاظ سے فرق کیا ہی نہیں جا سکتا. بادشاہ کا حکم ایک چپڑاسی پہنچائے یا بڑا پہنچائے حکم کا انکار ہے. مراتب کی بحث یہاں نہیں ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. وقالو سمینا واتان دیکھیں وہیں اسی مضمون کو کھول دیا ہے. ہم فرق کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہمارا مذہب یہ بن گیا کہ سمینا واتان ہم تو سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے یہ بحث ہی نہیں اٹھتی کہ فلاں نے پہنچایا اس کی کم اطاعت اس کی زیادہ. یہ کوئی سوال نہیں ہے. ہمارا مذہب یہ بن گیا ہے سمینا واتانا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی.
गुफराना का रब्बना व इलैकल मसीर, और ए अल्लाह तेरी बख्शिश के हम तलबगार हैं। तलबगारी का लफ्ज़ यहाँ वैसे ज़ाहिर नहीं हुआ, मगर गुफराना का में मफूल है, मफूल बही है गुफराना, तो मुराद ये है हम चाहते हैं तेरी बख्शिश, हम तेरी बख्शिश के तलबगार हैं। रब्बना, ए हमारे रब, व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ हमारा ठिकाना है, यानी लौट कर जाकर आखिर वहीं ठहरना है, वहीं हमें करार पर आएगा आखिर पर जब तेरे हजूर हाजिर हो जाएंगे। मसीर में ठिकाना होता है, तेरी तरफ ठिकाना है, मतलब है हर चीज़ ने लौट कर तेरी तरफ जाना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी तौफीक से बढ़कर बोझ नहीं डालता। ला युकल्लिफ हो, तकलीफ नहीं देता, तकल्लुफ नहीं करता मुराद नहीं है। हमारे उर्दू में तकल्लुफ का और माना है, किसी को तकलीफ नहीं देता यानी मजबूर नहीं करता। इल्ला वुसअहा, मगर उसकी उस तौफीक के मुताबिक जो उसने खुद उसे अता कर रखी है। हर चीज़ की एक वुसअत है, हर नफ्स जो दुनिया में है उसमें इंसान हो या गैर इंसान हो, यहाँ लफ्ज़ नफ्स है जो अहमियत रखता है। जितनी भी मखलूक़ात हैं जो नफूस वाली मखलूक़ात हैं जिनमें नफ्स है, उनकी अपने दायरा कार में उन पर उतनी जिम्मेदारियां डाली गई हैं जो वो अदा कर सकते हैं, उससे बढ़कर नहीं। तो ये मजमून सारी तख्लीक पर हावी है। तो इंसान पर कैसे खुदा ताला उसकी तौफीक से बढ़कर जिम्मेदारी डाल सकता है? इसलिए जो डाल देता है वो कर सकते थे, कर नहीं सके तो जिम्मेदार हो जाओगे। वो बात कहते हैं जी 5 वक्त नमाजें हम कैसे पढ़ें, आजकल तो ज़माना बदल गया है, और 5 वक्त गप्पे मार सकते हैं, 5 वक्त कॉफ़ी पी सकते हैं, 5 वक्त और बातें हो सकती हैं, नमाज नहीं हो सकती। तौफीक है वो किसी और जगह खर्च करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है जो हमने अपने लिए वक्त तुम्हें दिया हुआ है वो तुम उसके अमानतदार हो, वो हमें ही देना होगा। तो तकलीफ़ दी है मगर साथ तौफीक पहले दे रखी है, ये मुराद है। तो हर नफ्स को अल्लाह ताला उसकी तौफीक, उसकी वुसअत के मुताबिक तकलीफ़ देता है, उससे ज़्यादा नहीं। लहा मा कसबत, उसके लिए है जो कुछ उसने कमाया। व अलैहा मक्तसबत, और उस पर है, उस पर उसकी ज़िम्मेदारी है जिसका उसने इक्तिसाब किया। अब बताएं, जहाँ नेकी का जिक्र फरमाया है उसके लिए है अजर का, जहाँ तक जिक्र है वहाँ कसबा फरमा दिया है। जहाँ बदी का जिक्र है जिसकी सज़ा मिलनी है वहाँ इक्तसबा फरमा दिया है। तो ये फ़र्क क्यों है, फरमाइए। श्री रोशन साहब तुसी बड़ी देर तो बोल नहीं रहे, की गल है? तबीयत खराब है या गुस्से हुए किसी को? नहीं, ये जो बात है इसका जवाब देना। कभी आप भी बोले किसी ज़माने में, कभी हम भी तुम भी थे आशना, याद हो क्या ना याद हो, बहुत बोला करते थे आप, कुछ तो बोले। अगर नहीं तो फिर बेशक ना बोलें, अगर समझ आए तो बोलना चाहिए, वरना नहीं, जबरदस्ती नहीं बोलना। मुझे कोई और बताएगा उलमा के सिवा? चलिए उलमा आप शुरू हो जाएं, आप बताएं बाजो साहब। इसमें जो गुनाह करता है वो ज़्यादा कोशिश करके करता है, ज़्यादा जितने अल्फाज ज़्यादा हो जाते हैं, हद से ज़्यादा हो जाते हैं, उतनी मेहनत ज़्यादा शामिल होती है। उसकी मेहनत की तरफ इशारा है, ज़्यादा कोशिश करता है गुनाह करने की। और कोई? इमाम साहब फरमाइए। खास नीयत भी उसमें शामिल हो जाती है, खास इरादे से। कसबा में नीयत नहीं होती? उसमें नीयत तो शामिल होती है लेकिन बतौर ख़ास उसकी कोशिश और इरादा नहीं। फ़र्क क्यों है ये, किस तरफ इशारा कर रहा है ये फ़र्क? अल्लाह की पकड़ की तरफ या उसकी मग़फ़िरत की तरफ? बाब इफ्तियाल की वजह से, बाब इफ्तियाल। हाँ, ये आपको पता लग गया, बाब इफ्तियाल, ये बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि जो कुछ किसी ने कमाया, खा कोशिश की हो या ना की हो,
नेकी सरजद हो जाए सही, उसके खाते में लिख ली जाएगी। ये अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और उसकी रहमत की वुसअत की तरफ इशारा है। ये बहस नहीं अल्लाह उठाएगा तुमने नेकी की नीयत की थी या नहीं की थी, उसके खाते में लिखी जाएगी। इसकी मिसाल वो है जो फरिश्तों का जिक्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि फरिश्ते खुदा के सुबह शाम फेरे लगाते हैं। एक तमसील है, एक ऐसी मजलिस पे का जिक्र किया उन्होंने खुदा के हुजूर जिसमें अल्लाह का जिक्र कर रहे थे लोग। उस वक्त उनको खुदा ने फरमाया बख्शे गए, उनकी बातें सारी, उनकी नेकियां मंजूर, अच्छी अच्छी बातें उनके मतलब बयान फरमाई। तो एक फरिश्ते ने, जो फरिश्ता रिपोर्ट लेने वाला था, उसने अर्ज़ किया ये तमसीलात हैं, वरना अल्लाह को तो सब कुछ इल्म है कि ए खुदा उसमें एक इत्तफाक से मुसाफिर बग़ैर नीयत के कि तेरा जिक्र करे वहाँ बैठ गया था। ये है मज़मून। अल्लाह फरमाता है ऐसे लोग हैं जिनकी सुबह में बैठने वाला कोई शक ही नहीं हो सकता, खा नीयत थी या नहीं थी, उसके हक़ में भी वही सवाब लिखे जाएंगे जो उनके थे जिन्होंने जिक्र किया था। ये तब मिसाल है इसकी माँ का सबक कि जो कमाते हैं नेकी बातें हैं, नेकियां सरजद हो जाएं सही। अल्लाह इस बहस में नहीं पड़ेगा फिर कि किस हद तक इरादा था, किस हद तक नहीं था। अच्छी बातें हो जाएं तुमसे तो खुश नसीब हो तुम्हें उसकी जज़ा दे देगा, मगर बदी के मुतल्लिक एहतियात फरमाएगा कि अगर कोशिश करके बदी की गई है और उसमें नीयत भी है, अमदन इरादतन को बदी की है, इत्तेफाकन सरजद नहीं हुई, तो उस बदी की सज़ा मिलेगी जिसमें ये शर्तें पूरी हों। अगर गलती से कुछ हो जाएं, चीज़ें भूल चूक से गलतियां हो जाएं या इरादा ना हो और गलती हो जाए, तो उसको अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा, उससे सरफ़ नज़र फरमा सकता है अगर वो चाहे। इसकी मिसाल हज़रत आदम के मामला में है, जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया फ़लम नजिद लहू अज़मा, कि हमने जो उससे ये एहसान का सलूक किया इसलिए कि उसमें हमने बदी का अज़म नहीं देखा था, इख्तिसाब नहीं किया था। उसने हो गई थी गलती मगर इख्तिसाब नहीं था। तो नबी की मासूमियत का भी उससे जवाज़ निकलाया, यानी इशारा मिल गया उसका कि नबी ऐसी गलती नहीं कर सकता, खा इब्तदाई नबी ही हो, कि बिल इरादा इख्तिसाब करे बदी का। गलती हो सकती है और वो गलती कुछ एक ठोकर में भी बदल सकती है, जिसकी एक बड़ी मिसाल हज़रत आदम की थी। बात के किसी नबी में खुदा ताला ने ऐसी किसी ठोकर का जिक्र नहीं फरमाया जिसमें फिर उसकी वजाहत करनी पड़ी हो। तो इतनी सी जो ठोकर थी उसमें भी इख्तिसाब शामिल नहीं। तो ये मतलब है कि जो इख्तिसाब करेंगे उनको सज़ा मिलेगी, लेकिन इख्तिसाब के बग़ैर जो बदियाँ हैं उनसे ज़्यादातर मग़फ़िरत ही का सलूक होगा। लेकिन ये याद रखना यग़फ़िरु लिमन यशा, ये पहले गुज़र चुका है। युअज़्ज़िबु मन यशा, अमन में कोई भी नहीं है जब तक खुदा का फजल शामिल ना हो। यानी इसकी वजह से ये ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि चलो छोटी छोटी गलतियाँ होती रहेंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस नीयत से छोटी मोटी गलतियों में इंसान अपने आप को छुट्टी दे दे तो वो सब गलतियाँ इख्तिसाब में दाखिल हो जाएंगी। रब्बना ला तुआखिज़ना, ए हमारे रब हमें ना पकड़, इन नसीना यानी हमारा मुआख़ज़ा न फरमा, अगर हम भूल जाएं, और अख्ताना या हमसे ख़ता हो जाए। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन, और ए हमारे रब हम पर ऐसा बोझ न डाल, कमा हमलतहु, जैसा कि तूने उन लोगों पर डाला जो पहले थे, हमसे पहले थे। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बे, और ए हमारे रब हम पर उतना बोझ न डाल जो हमारी ताकत से बढ़कर हो। वाफ़ अन्ना, और हमसे अफ़व फरमा, दरगुज़र फरमा, वग़फ़िर लना, और हमसे बख्शिश का सलूक फरमा, वरहमना, और हम पर रहम फरमा, अंत मौलाना, तू हमारा मौला है, फ़नसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, बस हमें काफिरों की कौम पर नुसरत अता फरमा। इसमें दो तीन ऐसे मामलात हैं जो तर्जुमे के बावजूद समझाने के लायक हैं, ज़रूरी हैं। वो इंशाअल्लाह कल करेंगे क्योंकि आज वक्त ख़त्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम।